I am Lokesh Shetty and today we'll discuss about electrostatics. We have already covered what is Coulomb's law, okay? Coulomb's law, that is electrostatic force. F is equal to 1 upon 4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square. And then electric field. What is electric field? Force acting per unit test charge. Okay, force acting per unit test charge. And after that we studied properties of electric line of forces, that is Pitti's. Okay, so now today we will discuss about we will study what is electric dipole. Electric dipole. What is electric dipole? क्या होता है electric dipole? So dipole. So there should be a pole between two charges. Okay. So suppose we have two charges. This is one charge and this is another charge. This is one charge, this is another charge. Consider this is negative charge and this is positive charge. And there is a fixed distance between these two charges. What is that distance? This distance is 12. So if the whole distance is 12, then can I say this half distance will become L and this will also be L. तो अगर हमको define करना है what is electric dipole, so can I say two equal and opposite charges separated by a fixed distance. Two equal and opposite charges separated by a fixed distance is known as electric dipole. Okay, चलो लिख लेते हैं definition जल्दी जल्दी. Two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges separated by a fixed distance. A fixed distance. This is electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल सर क्या काम आता है इसके? अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, तो हम लोग इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे. विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? द strength of electric dipole. The strength of electric dipole is known as the strength of electric dipole is known as electric dipole moment. Electric dipole moment. Electric dipole moment is represented by a letter P and it's a vector quantity, so P bar. It's a vector quantity. ठीक है? General definition is the strength. Dipole का strength निकाल लूंगा मैं. I'll try to calculate the strength of this dipole. The strength of this dipole is known as electric dipole moment. What is the meaning of moment? Moment means ability. इस dipole की ability क्या है? If we keep this dipole in electric field, this will start rotating in electric field. Rotate करने से फायदा क्या होगा? हमारा क्या फायदा होगा इसको रोटेट करके? अगर मेरे पास P होगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यही P मुझे क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये P कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास, वो हम लोग को डिस्कस करना है इसके नेक्स्ट टॉपिक में. सबसे पहली बात, अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब क्या बताया मैंने? अबिलिटी. सो अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल घूम रहा है, इसका मतलब इसके पास टॉर्क है. क्या है इसके पास? टॉर्क है इसके पास. ठीक है, इसके पास है टॉर्क. तो मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वो कैलकुलेट करने के पहले मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी स्ट्रेंथ है कितनी. तो पहले डेफिनेशन लिख लेता, फिर फॉर्मूला बना लेते हैं इसका. डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल? तो जनरल डेफिनेशन हो गया, थियोरेटिकल. वैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होगा हमारे पास. सो डेफिनेशन देखते हैं इसका. द प्रोडक्ट
of strength of the product of strength of magnitude of two charges and distance between two charges मीनिंग क्या है? आपको क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. अच्छा, तो दो चार्ज नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ पे वन चार्ज लिखता हूं. दो लिखने की जरूरत है, इधर वन लिख लेता हूं. मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव क्यू है, दिस इज नेगेटिव क्यू. दिस इज पॉजिटिव क्यू, दिस इज नेगेटिव क्यू. पॉजिटिव नेगेटिव मत देखो, बस स्ट्रेंथ देखो. सपोज करिए +2 कूलम है, वो वाला -2 कूलम है. मुझे क्या लेना है? खाली 2. मुझे नंबर से लेना देना है खाली. सो सिर्फ मैं यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज. लो भाई, एक चार्ज का प्रोडक्ट लिख लिया और उसका मैग्नीट्यूड लिया मैंने, ठीक है. और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 2L. डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल. ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल का याद रखेंगे हम लोग. अगर आपको ये वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको मैं लिखने वाला हूं P बार इज इक्वल टू Q इंटू 2L. और यहाँ पे एक N क्या पाता है, ये याद रखेंगे. तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. याद रखना है. P का डायरेक्शन कैसे होगा? कैसे लेना है डायरेक्शन? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. याद रखना है. इतनी चीजें मुझे डायपोल के बारे में मालूम होनी चाहिए. डायपोल पोल की तरह दिखता है ना ये. इफ सपोज दिस चौक, ये एक पोल है, इसके एक कॉर्नर पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक कॉर्नर पे एक नेगेटिव चार्ज. ये दो चार्ज एक पोल क्रिएट करे, एक डिस्टेंस क्रिएट करे. इसी को तो इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं. और ये डायपोल क्या करेगा? घूमेगा. डायपोल क्या करेगा? घूमेगा. ठीक है. तो घूमेगा तो टॉर्क क्रिएट करेगा. वो टॉर्क थोड़े टाइम में निकालेंगे हम लोग. पहले वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया हम लोग ने. पहले मैंने बोला टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस. Two equal and opposite charges, this is negative, this is positive, separated by a fixed distance is known as electric dipole. और इसी इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर मैं स्ट्रेंथ निकालने जाऊंगा, उसके स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इसके स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया, दैट इज थ्योरेटिकल बेसिस पे. अभी मैं क्या बोलूंगा आपको? प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज. कोई भी एक चार्ज का क्या लेना है? मैग्नीट्यूड, और उसके बीच का डिस्टेंस लेना है. दोनों का मल्टीप्लाई करना है, P आ जाएगा. सो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. मोमेंट मींस एबिलिटी. इसका डायरेक्शन कैसे होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इतना मालूम होना चाहिए. अब यहाँ पे इस डायपोल के पास दो चीज है. जैसे सपोज करो ये मैंने वो डायपोल बनाया है, ये दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो एक लाइन में ऐसे पास करना है. दिस लाइन इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ डायपोल. एक्सिस ऑफ डायपोल. और अगर इसी लाइन पे से एक और लाइन पास करा दूं मैं, तो उसको एक्सियल लाइन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन. पर अगर आप लोग ये जो सेंटर है, सेंटर से क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. This line is perpendicular to axis. This line is known as equatorial line. क्या नाम बोला मैंने? Equatorial line. हम लोग को क्या करना है इससे? मुझे इस एक्सिस पे इस डायपोल ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई वो फाइंड आउट करना है. फिर से इस एक्सिस पे ये डायपोल ने, एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी एक रैंडम पॉइंट P पे ये डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है.
प्लस ये डायपोल इस इक्वेटोरियल लाइन पे या फिर इक्वेटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला आने चाहिए, इतना क्लियर है। प्लस ये डायपोल घूमेगा भी, ठीक है, ये डायपोल घूमेगा भी क्योंकि एबिलिटी इसकी क्या है, घूमना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे पहले इसका टॉर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टॉर्क? इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बोलता हूं मैं, टॉपिक तो बहुत बड़ा लग रहा है। देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in uniform magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। लो भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी तो ई बार लिख दिया मैंने, ई बार, ये ई का डायरेक्शन है। इसमें क्या रखना है आप लोगों को? इसमें क्या रखना है? इसमें मुझे एक डायपोल रखना है। डायपोल के पास कितने चार्ज है? दो चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। उस डायपोल को मैंने ऐसे रखा, देखो ये आपका डायपोल है। इस एंड पे मैंने अज्यूम कर लिया एक पॉजिटिव चार्ज है, इस एंड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? कितना है डिस्टेंस? 2L है, ओके। और सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये सेंटर अज्यूम कर लूं, सेंटर, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? L, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? L, L and L, 2L, ओके। अब क्या होगा यहाँ पे? ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा तो इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर से बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसा अज्यूम करना है कि इस प्लेट पे आपके पास, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव, राइट। दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव। रिपेल करेगा तो ये दूर जाएगा, और ये किसके नजदीक जाएगा? ये वाला जो चार्ज है किसके नजदीक जाएगा? नेगेटिव के नजदीक जाएगा। तो इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगना चाहिए फोर्स। ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स जो लग रहा है, फोर्स लग रहा है चार्ज पे, किसने लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फोर्स अप्लाई करता है किस पे? एक चार्ज पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, याद आ रहा है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लेते हैं यहाँ पे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज, यहाँ पे डायपोल का चार्ज है मेरे पास। यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लो आप लोग। फोर्स कितना होगा? फोर्स हो जाएगा E इंटू क्यू, या QE, जो लिखना है आप लोग लिख सकते हो, QE। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? QE। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव QE। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो जाएगा नेगेटिव QE। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। सोच के देखो, ऐसा डायपोल है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो घूमेगा नहीं क्या? सोचो ना। इसके इधर फोर्स लग रहा है ना, इधर मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो चीज घूमेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने से वो चीज घूमेगी, ठीक है। ये तो हमने फोर्स बता दिया कैसे इस पे लगने वाला है। अब एक चीज और देखते हैं, ये जो डायपोल है कुछ एंगल भी इधर बना रहा है। देखो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा।
तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से ये देखो, ये क्यों ड्रॉ किया बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए मुझे। क्या है टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला बोलो। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स लिखना है मुझे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, दो फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज है, दो चार्ज के बीच का या दो फोर्स के बीच का लिख लेते हैं हम लोग। बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले F को मैं लिख लेता हूं, F ओनली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज, सपोज करो अभी देख लेते हैं ये डायग्राम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो चेक करते हैं। ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नेमिंग करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। सपोज करो ये वाला पॉइंट है आपका A, ये वाला पॉइंट है आपका B और ये वाला पॉइंट है आपका C। तो आपको दिख रहा होगा B से यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, B C। और टॉर्क को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इन्वर्टेड J बोलता हूं मैं, लैटरल इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड ना, तो J ऐसा दिखता है ना, इसका उल्टा कर दो भाई, ऐसा। ये टॉर्क है, ये सिंबल का नाम क्या है? टाउ, याद रखेंगे, टाउ नाम है इसका। टाउ इज इक्वल टू F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे BC, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 2L है। ठीक है, एक चीज देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, विच एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो गया। ये 2L है, मैंने फोर्सेस को रिजॉल्व करना भी सिखाया आपको। फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं? ये L है, ये थीटा है, थीटा के जिस बाजू वाला क्या हो जाएगा? cos थीटा। सो ये cos थीटा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? sin थीटा। फिर से ये 2L है, दिस इज 2L, ये 2L है, ये थीटा है, 2L थीटा, 2L थीटा, थीटा के जस्ट बाजू वाला कंपोनेंट 2L cos थीटा। सो जो बच गया है वो 2L sin थीटा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, दिस इज 2L cos थीटा, 2L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका? 2L sin थीटा। सो हॉरिजॉन्टल किसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग? 2L को रिजॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज 2L cos थीटा, दिस इज 2L sin थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव 2L sin थीटा, और फोर्स हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना है फोर्स? Q इंटू E, Q इंटू E। अभी एक चीज देखो आप लोग, 2L इंटू Q कितना होता है? 2L इंटू Q, अगर आप लोग को याद है 2L इंटू Q क्या होता है? 2L इंटू Q, 2L इंटू Q, P होता है, P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सो ये लिख लिया मैंने P, यहाँ पे साइड में रीजन दे दो आप लोग। P क्या होता है? 2L इंटू Q या Q इंटू 2L, तो P लिख दिया, बचा है आपके पास E, और एक चीज और है यहाँ पे sin थीटा। तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। सो अगर ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, P इज वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर के साथ कौन है? sin थीटा, मतलब sin थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E विल गिव टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? टाउ बार इज इक्वल टू, साइन थीटा हटा दूंगा तो क्रॉस आता है, मतलब कैसे लिखना अभी? P बार क्रॉस E बार। दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इतना टॉर्क इस डायपोल पे एक्ट करेगा व्हेन यू प्लेस दिस डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेम चीज आप लोग ने किया है मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, जहां पे आप लोग क्या लोगे? मैग्नेट लेते हो, यहाँ पे नॉर्थ पोल लोगे, यहाँ पे साउथ पोल लोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां पे क्या आंसर आता था? ये P है, वहां पे क्या आएगा?
यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल आएगा ना, वहां पे एम आता रहेगा, बी एम डी साइन थीटा, वहां पे एम डी साइन थीटा, यहाँ पे पी ई साइन थीटा, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके